کوثر کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والشفاعات وعلی الحسین ورفقائہ الذین فازوا بالشہادات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نہ رہے غوث اعظم لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے یہ، یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ باد توحید کے متبالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں، حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں، آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار، گرتوں کو اٹھانے والے نبی، روتوں کو ہنسانے والے نبی، میدان محشر میں کام آنے والے نبی، ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستانی رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی، زور سے پڑھیں اللہم صلی علی، بیٹا تھوڑی آواز دے دوں یہاں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھ لیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج اکثر جلسوں کے حالات ایسے ہیں، شورائے کرام نعت نبی پڑھ کر بیٹھتے ہیں تو لوگ جانے لگتے ہیں۔ میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ علماء سے انہیں تکلیف ہے یا تقریر سے تکلیف ہے، تکلیف آخر کس بات سے ہے؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، علماء کی شان کیا ہے، مفتیوں کی شان کیا ہے، طلباء کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، پاکی اور ناپاکی کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے؟ جب آپ تقریر سنیں گے نہیں تو یہ ساری باتوں سے آپ دور رہیں گے، پھر دنیا بھی آپ کی برباد ہوگی، آخرت بھی آپ کی برباد ہوگی۔ پوری دنیا کا آدمی چاہتا ہے میں ترقی کر لوں، تنزلی سے ہٹ جاؤں، لیکن آپ ہیں، خاص کر ہمارے جلسوں میں جیسے ہی خطیب آتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا کام آپ نہ کریں۔ آپ کے بھی پاس سینے کے اندر ایک دل ہے، تو جو تقریر کرتا ہے اس کے پاس بھی ایک دل ہے۔ اللہ نے کبھی آپ کو حق نہیں دیا ہے کسی کے دل کو توڑا جائے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا جائے۔ کرسی پر بیٹھنے والے میرے بھائی سے میری گزارش ہے، میری محبت میں نہیں، آمنہ کے لال کی محبت میں آپ کرسی چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب کسی سے نہ تم گلا کرنا، پیار دشمن سے بھی کیا کرنا، گھیر لے جب کوئی پریشانی آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک کو دیکھ کر کے تھوڑی سی پوری پلین کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں نہیں بیٹھیں گے آپ لوگ نہیں آ سکتے، جو بوڑھے ہیں وہ بیٹھیں۔
जो अल्हम्दुलिल्लाह जवान हैं वो आ जाएं। शायर कहता है ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा को देखा, मुफ्ती साहब के तलबा को देखा, यहाँ के बच्चों को देखा, मुंतज़मीन हजरात को देखा, तो मेरे दिल ने कहा ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, खास उलमा किराम थोड़ा करीब आ जाएं। मैं आपकी जूतियां सरों पे रखने को तैयार हूं। ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है, और हक है जीने का हमें भी ज़मीन हिंद में ऐराना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। फिर एक शायर कहता है ना दौलत ना महल ना शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। ना दौलत ना महल ना शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। और मेरी गरीबी यही रह रह कर सदा देती है, मेरी गरीबी यही रह रह कर सदा देती है। हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे, सुभान अल्लाह। हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे। और जिस एमपी में मैं रहता हूँ वहां का एक हिंदू शायर ने कहा था, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। रखता हूं मैं भी खाने काबा की आरज़ू, अरे मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दे रहे हैं, और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूं, एक मिनट जाया नहीं करता हूं, एक सेकंड जाया नहीं करता हूं, बेकार करने की जरूरत नहीं है। आज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में आप ताउन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में आप जानते हैं, यहां से खानका पहुंचते हैं, मदरसे के तलबा से मिलते हैं, असातिज़ा से मिलते हैं। आपने देखा है कि इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, कमेटी की कोशिश, काबिज माँ बाप की कोशिश और काबिज ये रंग लाई है कि 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं। कल उनके सरों पर खुदा की कसम दस्तार बंदी रखी जाएगी, पगड़ी बांधी जाएगी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं मंजर नवाज, अगर एक आदमी हाफिज बन जाता है, अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बना देता है, मुफ्ती जमील अख्तर साहब मेहनत करके एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना देता है, मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद अगर बच्चों को मेहनत करके हाफिज़े कुरान बना भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसकी सैलरी कितनी होगी? वही सैलरी होगी 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, और रमजान में 50,000 रुपए। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो हाफिज़े कुरान बनाया तो क्या हो गया? 3 साल बड़ी मेहनत की, बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया। हाफिजों ने मेहनत की, बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया। मैंने कहा सुन ले, तेरा इनाम की जरूरत नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। मंजर नवाज बताना चाहता है, अगर माँ बाप की मेहनत रही, कमेटी की मेहनत रही, मुफ्ती जमील साहब की मेहनत रही, कारी कौसर की मेहनत रही, असातिज़ा की मेहनत रही, मुफ्ती ताहिर साहब की मेहनत रही, 3 साल के बाद उसका बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, इनाम क्या मिलेगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उसके घर में जो है 4 बेटे हैं, एक बेटे को इंजीनियर बनाया, एक बेटे को MBBS डॉक्टर बनाया, एक बेटे को एडवोकेट बनाया, और छोटा बेटा था उसको हाफिज़े कुरान बनाया। मैंने कहा इनाम देखना चाहता है तो जरा गौर से करीब आ जा और इनाम देख ले। अब वो बच्चा घर पहुंच गया, दस्तार बंदी दी गई है, अब जुम्मे का दिन आ गया है, उसका तीनों बेटा भी है, गांव का चौधरी भी है, गांव का प्रधान भी है, गांव का मुखिया भी है, गांव का MLA भी है, गांव का मिनिस्टर भी है, गांव के बड़े बड़े लोग भी है। लेकिन मैंने देखा मुफ्ती साहब ने कहा फलाना साहब हाफिज बन गया है, कहा खानकाह में दस्तार बंदी मिली है, कहा एक काम का बेटा मुसल्ले पे खड़े हो जा। मैंने कहा यार जरा ये बता दे, तेरा बेटा एडवोकेट है, वो पीछे है, इंजीनियर है, वो पीछे है, वो डॉक्टर है, पीछे है, चौधरी है, पीछे है, कलेक्टर है, पीछे है, जो बेटा हाफिज़े कुरान बना वो आगे है। ये इनाम दुनिया वालों ने नहीं दिया, मेरे परवरदिगार ने दिया। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
जश्न दस्तार हिफ्ज नारे तकबीर। सच बताना, इनाम मिला है कि नहीं है, इकराम मिला है कि नहीं है, ये मर्तबा मिला है कि नहीं मिला है, ये मर्तबा किसी दुनिया वालों ने नहीं दिया है। हजरत आज उलमाए किराम को जो है लोग तनकीद की नजर से देखते हैं, ये आलिम बन गया भी तो क्या हो जाएगा, हाफिज़ कुरान बन भी गया तो क्या हो जाएगा, और मुआजना भी करते हैं। चचा भाई मेरे गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं मौलाना अगर बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया तो क्या मार लिया है, कितना बड़ा तीर मार दिया। मैंने कहा कहना क्या चाहता है, क्या जानते हैं आप उनकी सैलरी कितनी है, मुफ्ती जमील साहब की सैलरी 20,000 25,000, लेकिन मेरा बेटा है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो, कहा मेरा बेटा दिल्ली में है, मेरा बेटा पूना में है, मेरा बेटा यूके में है, मेरा बेटा अमेरिका अफ्रीका चीन जापान मिस्र में है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो, कहा मौलाना की तनख्वाह 20,000, मौलाना की तनख्वाह 25,000, हाफिज की तनख्वाह 15,000, लेकिन मेरा बेटा जो लंदन में है 1 लाख रुपए सैलरी कमाता है, मेरा बेटा 2 लाख रुपए कमाता है, मेरा बेटा अमेरिका में है 3 लाख रुपए महानमा कमाता है। ये सैलरी मेरे बेटे की ज्यादा हुई, बताओ आलिम बड़े अच्छे हुए या मेरा बेटा अच्छा हुआ। मैंने कहा सुन ले, ये तू कह रहा है, ये मुआजना कर रहा है। कहता मौलाना बन भी गया तो साइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। मेरा बेटा तो संगे मरमर के मकान में रहता है, टाइल्स और मार्बल में रहता है। मेरा बेटा आता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, मेरा बेटा आता है तो हवाई जहाज में आता है। एक मौलाना की हैसियत क्या है, ये तराजू में नापते हैं, तोलते हैं, कहते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अरे नादान, तो दुनिया वालों से क्यों पूछ रहा है, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है, जिस मुस्तफा का कलमा हम सबों ने पढ़ा है, उस आका से जरा पूछें, उस नबी से जरा पूछें, कहा वो यासीन से पूछें, मुरादुल मुश्ताकीन से पूछें, शम्सुल आरिफीन से पूछें, अल्लाह के हबीब से पूछें। या रसूल अल्लाह, दुनिया वाला कहता है जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, जो अच्छी गाड़ी पे सफर करता है वो बेहतर है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से सफर करता है वो बेहतर है। आका आप बताएं बेहतर कौन है, उसका बेटा बेहतर है या काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला बेहतर है? या रसूल अल्लाह, उसका बेटा बेहतर है या कुरान सीखने सिखाने वाला बेहतर है? तो मेरे नबी ने 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सच बताना, तुम किसी की बात मानोगे या नबी की बात मानोगे? मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। अब तो समझ में बात आ गई, हाफिज साहब का रुतबा अल्लाह ने बड़ा किया है, आलिम दीन का रुतबा रब ने बड़ा किया है, मुफ्तियों का रुतबा रब ने बुलंद किया है। और आप जानते क्या है इन उलमाए किराम के बारे में, यही वो उलमाए किराम है रास्ते से चलते हैं तो खुदा की कसम सुराखों में रहने वाली चोटियां इन उलमा के लिए दुआ कर रही है, समंदर की मछलियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। और आप क्या जानते हैं कि इन उलमा के लिए सुराखों की जो है चोटियां दुआ क्यों करती है, समंदर में रहने वाली मछलियां दुआ क्यों करती है? इस दुनिया का दस्तूर है जब किसी को किसी से फायदा होता है तब दुआ की जाती है। चोटी को उलमा से फायदा क्या है, मछलियों को उलमा से फायदा क्या है? जरा गौर से सुनिएगा, जिम्मेदार स्टेज है, मंजरनाज जज्बात में बोल रहा है, ये इसका इश्क है, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। आला हजरत से किसी ने पूछा था ऐ अहमद रज़ा हम कैसी मोहब्बत करें, कैसा इश्क करें, कैसी अकीदत रखें? तो बरेली के ताजदार ने फरमाया इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते। तो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह बेशक माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा यही, जरा गौर करें, जब किसी को किसी से फायदा होता है, जब किसी को किसी से जो है उनसियत होती है, तब वो उसके लिए दुआ करता है। सुराखों में रहने वाली चोटियों को इन उलमा से फायदा क्या है, समंदर में रहने वाली मछलियों को इन उलमा से क्या फायदा है? तो उलमा किराम से पूछिएगा। हमारे अकाबरीन लिखते हैं खुदा की कसम, जब समंदर के पानी हो या दरिया के पानी हो या जो है तालाब
तालाब के पानी हो, जब सूखने लगता है तो होता यह है समंदर की मछलियां जो है आपस में जो है चितर बितर होती है, और समंदर की मछलियां उस वक्त जो है आपने से आपस में बाहर होती है। उस वक्त उलमाए किराम अपने हाथों को उठाकर दुआ करते हैं तो रब की रहमत जोश में आती है और रब बारान रहमत का नुज़ूल फरमाता है, तो मछलियां जल थल हो जाती है। तब उलमा के लिए दुआ करने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस है। आप बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। हजरत आज से चंद दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। एक मिलाद शरीफ की दावत थी, दिव्य का चहल्लुम का प्रोग्राम था, और जब वहां हाजिरी हुई तो हमने देखा था आज तोलोबा की इज्जत नहीं होती है, इनका एहतराम नहीं होता है, इनसे मोहब्बत से बात नहीं होती है। ये समझते हैं मदरसे में पढ़ने वाला अरे छोटा होता है, नहीं नहीं, ये छोटा नहीं होता है। इनके रुतबे को आमना के लाल ने बुलंद उठाया। बेशक बेशक बहुत। मेरे नबी ने जिसके रुतबे को बुलंद बनाया हो, आला बनाया हो, उसके कहना क्या है। खुदा की कसम मुफ्ती साहब, जब मैं वहां पहुंचा था तो मैंने देखा तकरीर मेरी अखीर में हुई, सलातो सलाम के बाद साहिब खाना बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था चहल्लुम का। उसने क्या कहा कि मदरसे के बच्चे खड़े हो जाओ, थोड़ा इधर खड़े रहना बेटा, पहले मेरे मेहमानों को खाना खाने दो। इतना कहा, खुदा की कसम मैं फौरन उठकर जाने लगा। आप जानते हैं जब आपके घर में चहल्लुम की महफिल सजती है, आपके बाप के नाम की मिलाद की महफिल सजाई जाती है, तब मदरसे में दावत होती है, कोई नहीं पहुंचता, पहले मदरसे के तलबा पहुंचते हैं। जब मदरसे के तलबा पहुंच गए, कुरान खानी शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म, कुरान बच्चों ने पढ़ ली। माइक लगाया गया और उसके बाद बच्चे नाते नबी पढ़ने लगे, बच्चे तकरीर करने लगे, और जब तकरीर होने लगी तब उलमाए किराम पहुंचे, तुम्हारे मेहमान पहुंचे, तुम्हारे रिश्तेदार पहुंचे। उसके बाद जो है यह महफिल इख्तिताम तक पहुंचती है। मेरी तकरीर हुई, हजरत तवज्जो चाहता हूं, तकरीर खत्म हुई तो उन्होंने कहा मदरसे के बच्चे थोड़ी देर आप खड़े रहना, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिला लेने दो। इतना कहा मैं जूते पहनकर जाने लगा। कहा मौलाना कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। कहा हजरत रुकिए ना, आप क्यों गुस्से में जा रहे हैं? कहा मैंने क्या कह दिया है? मैंने कहा तुमने छोटी बात नहीं कही है, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। कहा हजरत मैंने कहा क्या है? तुमने ये कहा कि पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाने दो, उसके बाद तुम खाना खाना। अरे सालिम तुझे पता नहीं है ये तेरा मेहमान है, मदरसे के तलबा आमना के लाल के मेहमान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। हजरात बात गलत कर रहा हूं, तकरीर जहां से शुरू हुई है वहीं से बात आगे निकल रही है। ये ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग कहते हैं मदीने की बात करते हो, मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, करते भी हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कहा मदीने की बात करते हो, मदीना तो बहुत दूर है। मैंने कहा दोनों आंखों का नाबीना है, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है और रोते रोते कहता है ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। एक बार नहीं कई बार, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदार हो गया। आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। हजरात मुहतरम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी नहीं चाहता हूँ हजारों का मजमा हो, लाखों का मजमा हो। हम जानते हैं खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं और जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं, फरिश्ते भी हुआ करते हैं। बहुत अच्छा मजमा है। इन तलबा की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उस अल्लाह वालों ने कहा था मेरी कौम के दया
सुभान अल्लाह। जी जी जी, कुतुब बिहार व बंगाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा व मौलाना व कंजुल दकागी अदीब शहीद हजरत मुफ्ती शाह शरफुद्दीन अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, व मुफ्ती हसन मंजर कदीरी साहब। मैं यहाँ तकरीर करने आया था और ये जात और मुफ्ती हसन मंजर कदीरी साहब भी बैठे थे। इस गुनहगार की तकरीर हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इन दोनों शख्सियत को गरी के रहमत अता फरमाए, इनकी रूह को आला इल्लीन में जगह अता फरमाए और इनके मज़ारात को आवामो खास के लिए जो है फैज़ आम बना। आमीन सुभान अल्लाह। जो भी जाएगा उनको जो है फैज मिलता रहेगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हजरत अल्लाह वालों ने कहा था, एक काम करना यार, इन मदरसे के बच्चों को तुम नहीं पहचान पाते हो, इनकी इज्जत, इनके रुतबे, इनके मर्तबे, इनके मकाम को नहीं जान पाते हो। मैंने एक रिसाला पढ़ा था हजरत, उस रिसाले में एक अल्लाह वाले का नाम था, लेकिन नाम मुझे आज याद नहीं है। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था, उस रब के महबूब बंदों ने क्या कहा था, एक काम करना लोगों, कहा क्या हुआ, कहा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है। मुरीदीन मुतकिदीन ने कहा हुजूर वसीयत बताएं, नसीहत बताएं। उन्होंने कहा बेटा मेरी वसीयत यह है, नसीहत मेरी यह है कि जब मेरी रूह निकल जाए, मेरी रूह तब से उन सरी से परवास कर जाए, तो एक काम करना, वो काम यह है कफन का कपड़ा लेके आना, तो कफन के कपड़े को काटना नहीं, उस कफन के कपड़े को लेके जाना और मदरसे के गेट में बिछा देना, मदरसे के गेट में पूरे कफन का कपड़ा बिछा देना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। फरमाते हुजूर फिर क्या करेंगे, कहा कि जब उसको बिछा देना, उसके बाद जब मुझे नहलाया जाए, उसके बाद कफन को लाया जाए, उसके बाद कफन मुझे पहनाया जाए, बगैर झटक के वो कफन पहनाकर मुझे कब्र के अंदर सुपुर्द कर दिया जाए, खाक के अंदर सुपुर्द कर दिया जाए, कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए। अल्लाह वाले की नसीहत थी। किसी ने पूछा सरकार आपकी ये वसीयत क्या है, आपकी नसीहत क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा सुन ले, जब मेरा रब मुझसे पूछेगा ऐ मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया है, तो ये नहीं कहूंगा नमाज लाया हो, रोजा लाया हो, बंदगी लाया हो, सजदे लाया हो, तिलावत लाया हो, कयाम लाया हो, रुकू लाया हो, बंदगी लाया हो। जब मेरा खुदा पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया है, तो कहूंगा मौला अपने कफन में रसूल बाबकार के मेहमान के कदमों का धूल कब्र में लेकर आए। नारो तकबीर, नारो रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार हिफ्ज़। क्या तमन्ना है, क्या आरज़ू है, क्या ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर इंसान के दिल में ऐसी ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, होता यह है कि आज हम लोग जानते हैं मौलाना हो गया तो क्या हुआ। सुनो, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, तसव्वुफ़ का इमाम है, मेरे अकाबिर उलमा बैठे हैं, मुझसे अच्छी तकरीर ये लोग करते हैं, ये तो बरकपन है, इस गुनहगार को इस कुर्सी में बिठाया गया है, नहीं तो मैं जानता हूं दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूं, सब मेरे जो है दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूं, सब मेरे आका की बात है। पहले उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है, राह में जब कोई दुश्वार मकाम आता है, जाने क्या बात है, लब पर तेरा नाम आता है। यह तसद्दुक किसी इंसान से मामूर नहीं, जिसे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कुरान पढ़ो, हदीस मुस्तफा पढ़ो, बुजुर्गाने दीन की अकवाल पढ़ो। इमाम गजाली क्या फरमाते हैं, इमाम गजाली सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। अब जो लोग इल्म हासिल नहीं करना चाहते वो सुने कि इमाम गजाली ने तुम्हें क्या कहा है, इमाम गजाली का फरमान क्या है। आज लोग कहते हैं हम कम है क्या, मौलाना से कम जानते हैं क्या। पान की टपरी में बुराई हो रही है, चाय की दुकान में उलमा की बुराई होती है, कान खोल के सुनो, उलमा की बुराई करने वालों, उलमा से चलन और हसद रखने वालों, कुरान कहता है उल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल लदीना ला यालमून। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। इमाम गजाली ने कहा अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, सारी दुनिया
کے لوگ مردے ہیں. امام غزالی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے پاس جو ہے جو کھاتا ہے وہ مردہ ہے, جو سوتا ہے وہ مردہ ہے, جو جاگتا ہے وہ مردہ ہے, جلسے میں جاتا ہے مردہ ہے, شادی بیاہ کرتا ہے مردہ ہے, کھانا پکاتا ہے مردہ ہے, مارکیٹ جاتا ہے مردہ ہے. امام غزالی نے کہا ہاں وہ مردہ ہے. امام غزالی سے سوال ہوا, امام غزالی اگر وہ مردہ ہے تو زندہ کون ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں الناس کلہم موتا الا العالمون, ساری دنیا کے لوگ مردے ہیں, زندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بہت خوب, سبحان اللہ. تو آپ زندہ نہیں ہے. علم اگر نہیں ہے تو ماں کی قدر نہیں. مفتی سہیل صاحب سبحان اللہ, بہت بڑے عالم دین, اخلاق کے پیکر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ایسے باوقار علماء کی عمر میں, عمل میں, علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. کبھی آپ گئے, امام غزالی نے فرمایا عالم بھی ہو تو کیسا ہو. امام غزالی نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ مردے, زندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے. سوال کرنے والوں نے کہا امام غزالی جس کے پاس علم ہے وہ کامیاب. عزازیل کے پاس بھی علم تھا, معلم الملائکہ تھا, جس کے پاس علم ہو وہ کامیاب. فرماتے نہیں پھر کامیاب کون ہے؟ فرماتے جس کے پاس علم ہے ساتھ میں عمل ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. چچا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں بالکل, حضرت مجمع جوان ہے اور ایک بہت بڑے خطیب کی آمد ہو گئی ہے. میں جانتا ہوں ایک خطیب آ جائے تو دوسرے خطیب کا وقت ختم ہوتا ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لیکن میں حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ حضور 2-4 منٹ مجھے دیا جائے کہ امام غزالی کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہے صرف وہ کامیاب نہیں. حضور جس کے پاس علم ہو کا علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. جس کے پاس علم ہے اور ساتھ میں عمل ہے, علم بھی ہے عمل بھی ہے وہ کامیاب. امام غزالی فرماتے نہیں کہ حضور علم بھی ہے عمل بھی ہے پھر بھی کامیاب نہیں. امام غزالی فرماتے نہیں حضور کون کامیاب؟ جس کے پاس علم ہو ساتھ میں عمل ہو ساتھ میں اخلاص ہو, خلوص بھی ہو, غیر بھی آئے, بچے آئے, بوڑھے آئے, جوان آئے, نبی کا عاشق آ گیا. ایسی محبت سے ملے کہ جب ملے تو دنیا دیکھ کر سوچے کہ اگر نبی کے وارث کا کردار اتنا اچھا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا کردار کتنا اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ کردار کو دیکھ کر, ان کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر, ان کی زندگی کا گوشہ گوشہ دیکھ کر دنیا تصور کرنے لگے کہ یہ نبی کے عاشق کا کردار اتنا اچھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کردار کتنا اچھا ہوگا. میرے مصطفیٰ کی زندگی کیسی ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج میرا بیٹا پڑھنا ہی نہیں چاہتا, میرا دوست پڑھنا ہی نہیں چاہتا, میرا عزیز قریب آنا ہی نہیں چاہتا, تقریر سننا ہی نہیں چاہتا. کہتا نبی کی عظمت ہم کیسے جانیں؟ میں کہتا تو کیا جان سکتا نبی کی عظمت کو؟ نبی کی عظمت کو جاننے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. اگر قرآن نہیں پڑھے گا تو نبی کی عظمت نہیں جان سکتا. اگر وہ قرآن پڑھنے لگے گا تو نبی کی عظمت کو جان لے گا. کہا کیسے؟ میں نے کہا سنو, زمین پر فلک پر نہ تاروں میں دیکھو, زمین پر فلک پر نہ تاروں میں دیکھو, محمد کو قرآن کے پاروں میں دیکھو, اور کمر کے ہو ٹکڑے پلٹ آئے سورج, یہ قدرت نبی کے اشاروں میں دیکھو. سبحان اللہ. اور اگر شان محبوب حق دیکھنا ہو تو قرآن کے 30 پاروں میں دیکھو. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے کی کوشش کرو, قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو. جب قرآن پڑھو گے تو تمہیں ساری عظمتیں سمجھ میں آئے گی, بات آگے نکل جائے گی. فرماتے ہیں سرکار جس کے پاس علم ہے ساتھ میں عمل ہے ساتھ میں اخلاص ہے وہ کامیاب. پہلے تو علم کا ہونا ضروری ہے. اور تمہارے پاس علم نہیں, تم بھی کہتے ہو مولانا سے میں کم ہوں کیا؟ ارے بھائی تیرے اور میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ قرآن نے اعلان کر دیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. بے شک سبحان اللہ. چچا عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں, پیسے میں بڑے ہو سکتے ہیں,
हाँ, नोट में बड़े हो सकते हैं, हेल्थ में बड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में बड़े हो सकते हैं, जमीन और जायदाद में आप आलिम से बड़े हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास इल्म है उसके बराबर तुम कभी नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उलमा की कद्र करो। फरमाते हैं हुजूर, जिसके पास इल्म है, अमल है, अखलास है, वो कामयाब। इमाम गजाली फरमाते नहीं का सरकार इल्म भी है, अमल भी है, अखलास भी है, फिर भी कामयाब नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं, गौर से सुनना, इमाम गजाली फरमाते हैं कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, साथ में अमल है, साथ में अखलास है, और ये जो सीना है ना, ये सीना तकब्बुर से पाक है। बोलो ना, खुदा की कसम ऐसे बावकार आलिम आपके यहाँ लेटे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हजरत ऐसे बावकार अल्लाह वाले लेते हैं, इल्म भी, अमल भी, अखलास भी, सीना तकब्बुर से पाक। अल्लामा मुफ्ती हसन मंजर कदीरी साहब से मेरी मुलाकात होती, खुदा की कसम ऐसे मिलते, इतनी दुआएं देते, सर पे हाथ रखते, ऐसा लगता था कि आलिम दीन ऐसे है जो किसी आलिम को अपने बेटे की मोहब्बत दिया करते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। यही धरती है यार, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करो, इन तलबा से मोहब्बत करने की कोशिश करो, और हो सके तो जुमेरात और जुम्मे के दिन इन तलबा को लेकर अपने बाप की कमर के पास ले जाया करो। जब ये बच्चे हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, मौला की रहमत जोश में आएगी, मौला तेरे बाप की भी मगफिरत करवाएगा, कब्रिस्तान के मरहुमीन की भी मगफिरत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे बावकार उलमा की इज्जत करें, तलबा की इज्जत करें, कि नबी के मेहमान हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके समात बड़ी अच्छी रही, लेकिन जब ये इदारा चल रहा है और इसको और आगे तक ले जाना है, मुफ्ती जमील अख्तर साहब की बड़ी मेहनत है, मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब किबला की बड़ी मेहनत है, और खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। खुदा की कसम, मेरे मुफ्ती आज़म हिंद जब कलम उठाते हैं तो कहते हैं, मेरे आमाल का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद क्या फरमाते हैं, बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं थोड़ी सी, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, वक्त खौफ ताने मुझे रोज़ पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान और अल्लाह। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो जहर खाता तेरे, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
مجھے بہت اچھا لگا حضرت، خدا کی قسم میں جو سنتا تھا اس بار آیا تو بارش ہو رہی تھی، لیکن آج میں نے دیکھا کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں۔ اس ادارے سے، اس خانقاہ سے آپ محبت رکھیں، ان اکابر علماء کی عزت کریں، احترام کریں، اور الحمدللہ جب آپ تعاون کرنے لگیں گے، ان کے شانہ بشانہ مل کر چلنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، قال رسول اور قال اللہ قال رسول کی سبائیں بلند کی جاتی ہے، یہاں مصطفیٰ کا غلام بنایا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ مضبوط اگر ہمیں کرنی ہے اس دور میں تو مدرسے کو مضبوط کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مدرسہ مضبوط ہو گیا، مدرسے میں تعلیم ہونے لگی تو ہمارے مسجد بھی آباد، خانقاہ بھی آباد، ہمارا گھر بھی آباد، ہمارا قبیلہ بھی آباد، ہمارا کنبہ بھی آباد، پورا بھارت آباد رضا آنے لگا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسے کو مضبوط کرنا ہے، اور سب سے زیادہ تعاون بھی اگر دینی ہے تو کہیں اور نہیں مدرسے میں دینی ہے۔ اگر آپ نے اس مدرسے میں تعاون دے کر مدرسے کو مضبوط بنا لیا، اس سال 10 بچے، آئندہ سال 20 بچے، پھر آئندہ سال 30 بچے، پھر آئندہ سال 40 بچے، تو سچ بتائیے یہ بچے جہاں جہاں جائیں گے اس گاؤں کا بھی نام روشن کریں گے، ادارے کا نام روشن کریں گے، علاقے کا نام روشن کریں گے، اور یہ بچہ جہاں جہاں بچوں کو تعلیم دیتے رہیں گے وہ بچہ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک تیری نسلوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب بہت خوب۔ اور مدرسے چلانے والے حوصلہ پست نہیں رکھتے۔ حضور حافظ ملت کی زندگی پڑھے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں۔ الحمدللہ چناگڑھ کی سرزمین تھی، گجرات کی، مسجد میں حضور حافظ ملت اپنے مدرسہ الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور کی چندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا یہ چندہ کرے گا، گھر لے جائے گا، کھائے گا۔ لوگ چاہنے والے تھے اٹھے کہ ان کو روکا جائے، ان کو جواب دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا ہر سوال کا جواب وہ نہیں ہوتا ہے، جواب وہ ہوتا ہے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے کام۔ جب کام کرو گے تو جواب مل جائے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حضور حافظ ملت آئے اور آنے کے بعد الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور میں خدا کی قسم وہ جو تعاون لائے تھے اس کو لگائے، تعلیمی معیار بڑھتا گیا۔ ایک دن آیا جو چوناگڑھ کی سرزمین پر چندہ کو دیکھ کر کے برا کر رہا تھا، اتنا پیسہ بھر کے لایا اور کہا حافظ ملت ہم نے دیکھ لیا ہے وہ آپ کے پیٹ کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے در کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب بہت خوب۔ پوری دنیا میں وہ اشرفیہ فیض کا جو ہے نام، اور دیکھیں علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، پورے مجمع میں ہے کوئی ایک میرا ایسا نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ؟ زیادہ نہیں، غوث اعظم کی 11ویں کا صدقہ 1100 روپے دے دے۔ پورے مجمع میں ہے، خدا کی